Good morning, students. One session we cancelled on Thursday due to some private issues. So today we are going to start with the accounting standard 19, and I hope you are doing good. You know already all accounting standards. Students, I request you all these accounting standards, if you have clarity only, then attend this class. Otherwise, it will be very difficult. If you are expecting from me that I will explain you what is operating lease and finance lease in this session. So at least every one of you must be aware of operating lease and finance lease. And in case of impairment, I'm going to cover two main accounting standard. I don't think that we can complete the top down and bottom up approach, but I will give you some basic background about top down and bottom up approach of AS28. And I will request you to attend your regular lecture of May 2025 so that it will be very easy for you, because we are going to finish these accounting standards within 7 to 8 sessions, and you can attend it if you do not have conceptual clarity. Okay. So now we are starting with the accounting standard 19. What I'm expecting from you that you must be aware the difference between operating lease and finance lease. Illustrations part, I'm going to take it in the class. That maximum illustrations we will solve like exam approach, and theory I won't cover it in the class. Okay, so I will give you time to take screenshots at the end for 100 pages, but I'm not going to explain you theory part. If you have any problem regarding operating lease and finance lease, you can ask me now. Otherwise, you can explain me what is the difference between operating lease and finance lease in simple language. Yes, if anyone is interested to answer this question, raise your hand. Sir, what is the difference between operating lease and finance lease? Any one of you? Yes, beta. Kashish? Yes, beta. Simple language में बता दीजिए what is the difference. गुड मॉर्निंग सर। तो ऑपरेटिंग लीज जो होती है फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज जैसे हम लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, जो एसेट की वैल्यू है, डिप्रिसिएशन, इनकम, वो सब लेसर रिकॉर्ड करता है। फाइनेंस लीज में क्या कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है और एसेट की वैल्यू सब लेसी रिकॉर्ड करता है। उसके लिए हमारे पास कौन सी लीज ऑपरेटिंग है और कौन सी फाइनेंसिंग, 5 इंडिकेटर्स होते हैं। अगर मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर करते हैं, मतलब एसेट की मेजर लीज पीरियड जो होता है वो एसेट की मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर करता है, तो फिर वो फाइनेंस लीज होती है। स्पेशलाइज नेचर का होते हैं तब वो फाइनेंस लीज होती है। ठीक है. और Okay. Yes, very good, beta Kashish. So, what I'm going to explain you is in very simple language. So first one, lease. Lease is we are not going to apply the standard if lease agreement or explore for use of the natural resources, because we have a separate guidance. Licensing agreement such as the item of motion picture films वगैरह इसमें नहीं cover होंगे, and if you are doing the lease agreement of using the land is also not covered over here. Lease, we can say this is the agreement between the lessor and lessee. It is the non-cancelable agreement. So basically, if it is non-cancelable agreement, then it will be called as a lease. Otherwise, we will call it as a rent agreement. If 11 months का agreement करते तो उसको rent agreement बोलते हैं. And it is a for a definite period of time to right. We are giving the right to control the use of the lease asset to the lessee for the consideration. Okay. So basic difference between lease and rent agreement is that rent is cancelable by giving the 1 month notice or 3 months notice. But here lease is not cancelable because you have to fulfill some conditions, then only you are going to cancel it. Okay, both parties must agree to cancel this agreement. So this is a basic term. So it is a non-cancelable period for which lessee has agreed to take the lease on the assets. For example, suppose if I have invested 80 to 90 lakhs rupees in one place, and suppose if that person is giving me 1 month notice, so better that will be very difficult for me to run the business, and therefore we cannot enter into a rent agreement. Here we will enter into the lease agreement. Okay, got the difference between lease and rent agreement. So rent agreement में क्या होता है भाई, 1 महीने का नोटिस देके आपने घर खाली कर दिया, तो घर खाली कर दिया तो ये क्या हुआ, ये रेंट एग्रीमेंट है. लीज में आप क्या करते हो बेटा, 5 साल का बड़ा आपने सेटअप लगाया हुआ है. आपने सपोज एक शॉप लिया हुआ है भाड़े पे, जिधर आपने पूरा का पूरा शोरूम बना दिया, और अभी आप वो रेंट के एग्रीमेंट में क्या होता है कि वो 10 साल 12 साल 15 साल, नहीं तो क्या होगा, आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट ही रिकवर नहीं हो पाएगा, उसने 1 मंथ का नोटिस दे दिया तो. सो दैट पीरियड इज ऑलवेज नॉन कैंसिलेबल पीरियड होता है, ये ध्यान में रखना. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लीज टर्म्स. ओके, एंड रेंट पीरियड. मिनिमम लीज पेमेंट. अभी मिनिमम लीज पेमेंट डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अभी ये ध्यान में रखो, what is the lease rental? Lease rental means amount you are paying every month or every per annum, that is called as a lease rental. And guaranteed residual value is nothing but, suppose at the end of the lease term, suppose lessee is telling you that I will buy this asset, okay, so that is called as a guaranteed residual value. Okay. If he is giving you guarantee, who is giving you the guarantee? See, lessee. Lessee means a person who is taking that asset on the lease. And lessor means who is giving you the asset. Okay. Owner, matlab owner is called as lessor, or jo tenant hai, it is called as a lessee in simple bhasha. Okay, so in simple language हम लोग इसी को बोल देंगे, what is the difference between lessor and lessee? See, lessee gives the guarantee, it is called as guaranteed residual value. But remember, in case of unguaranteed residual value, lessor, third person is giving you the guarantee, it is called as, not the lessee is not giving you the guarantee, but third person is giving you the guarantee, it is called as a UGRV, unguaranteed residual value. Now who is considering that UGRV? So but obvious, lessor will consider UGRV. See, he will consider UGRV and lessee will consider only GRV. Okay, so both for the calculation of the fair value, because here also we are going to see the fair value calculation. For fair value calculation, UGRV is very important. Remember, but in case of GRV, who is giving you the GRV? While calculating the fair value from the angle of lessee, GRV is important. Got the difference between two? देखो ये रिवीजन है ना, थोड़ा क्विक भी रहेगा एंड टू दी पॉइंट होगा, ये सटीक रिवीजन होगा. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. इधर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हम लोग रखने वाले हैं. सो आपको इतना ध्यान में रखना है कि वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू में आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है? यू हैव टू कंसिडर UGRV ओवर हियर, एंड लेसी के केस में आपको क्या कंसिडर करना है? तो GRV कंसिडर करना है. सो ये बेसिक डिफरेंस है. फटाफट कहां पे नोट डाउन करने होंगे तो पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए. तो फेयर वैल्यू इन केस ऑफ लेसर इज डिफरेंट एंड लेस इज डिफरेंट हियर. Economic life we are going to consider, not like property, plant and equipment. We consider useful life. Okay. So useful life don't consider here over here. Here you consider economic life, and useful life of the lease asset is the period for which the asset is expected to be used by the lessee. So that is the useful life over here. GRV and UGRV is very important. UGRV is unguaranteed residual value. Okay. It is the difference between residual value minus GRV and gross investment in lease. Now this is also, what is gross investment? The gross word is inclusive of interest. It is inclusive of interest, and unearned finance income is nothing but it is the interest amount. And difference between gross investment and unearned finance income is called as net investment. So gross investment is including interest, that is called as the, without considering the present value factor. Okay. If you are not considering capital budgeting के problem आपने किए ही होंगे, investment decision के problem आपने already solve किए होंगे. तो gross investment क्या होता है? तो gross investment is nothing but without discounting factor जिसको consider किया जाता है, that is called as a gross investment. And if you deduct the whatever the finance income from that is the interest part, interest portion उसमें से किया तो principal amount, and principal amount is nothing but net investment amount. This is called as net investment amount. Okay. हाँ. Now we will see, I'm going to explain you the treatment between lessor and lessee's book. See, lessor के books में how we are going to record the operating lease. See, first question comes to your mind. So here, this is your profit and loss account and this is your balance sheet. So how are you going to record the operating lease in the books of lessor? Lessor के books में what you are going to record? This is the asset. Okay, lessor के books में, lessor मतलब owner of the asset, not tenant of the asset. So he is going to record the asset. So definitely he is going to claim depreciation. Correct है? Depreciation is going to claim. Every month he will he will get some rent. So by rent in the simple language, actually this is called as lease rent, by rental income. So it is the income for him, and his expenses he will claim depreciation as the expenses or as a loss. Okay, so he will claim depreciation and he will record the rent amount, whatever amount which is decided he will record over there. Okay, so rent amount he will record over the P&L side. So it is very simple. Okay. Now this income might be, sometimes you will show the different income if you are recording income on the output basis. If you are recording the income on the output basis, so deferred income दिखाया जाएगा, so total income लिया जाएगा and over the output ratio में वो divide किया जाएगा, not in the basis of receipt basis. Okay, so you are getting suppose rent 30,000. So you are getting the rent 90,000, but this 90,000
now suppose your output of the first year is 20,000, second year is 30,000, and third year is 40,000. Okay, so your rent, now you received 30,000 but income should be 20,000, so you received in advance 10,000, so 10,000 you will record is the income, 20,000 दिखेगा, and rent received in advance 10,000 will be recorded as a liability. Okay, so 20,000 होगा, तो 30,000 no extra income, so 30,000 income है और income भी cash भी उतना ही मिला, and 30,000 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सो ये साल का रेंट इस साल में हमने एडजस्ट किया, सो यू गॉट द 10,000 एक्स्ट्रा आउटपुट, 30,000 should be the rent income, and now you will record 40,000 as the income in the third year. So income third year में कितना दिखेगा, 40,000, कैश में दिखेगा 30,000, and your received in advance 10,000 will get cancelled. Okay, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा, सो रेंट इनकम जो होगा रिसीव्ड इन एडवांस होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल रिकॉर्ड इन द P&L अकाउंट 20-30-40 and not 30-30-30. ओके, एंड अकॉर्डिंगली इफ इट इज बेस्ड ऑन द आउटपुट बेसिस, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनकम कितना रिकॉर्ड करोगे, नॉर्मली वॉट एवर द अमाउंट वी रिसीव्ड वी रिकॉर्ड इट एज इनकम, बट इफ इट बेस्ड ऑन द आउटपुट बेसिस, तो आउटपुट बेसिस पे होगा तो आपको आउटपुट बेसिस पे डिवाइड करना होगा. सो दिस इज द टू कॉन्सेप्ट विच आर इंपॉर्टेंट इन द लेसी एंड लेसॉर इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज. ओके, तो ऑपरेटिंग लीज का प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, तो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है ये समझ में आना चाहिए. ओके, तो क्या याद रखना है, लेसर विल रिकॉर्ड द एसेट, lessor will record the depreciation will be debited in P&L, and whatever income he is generating will be recorded on the P&L credit side. Remember, he won't show only that amount as a received amount. तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आउटपुट बेसिस पे उसका इनकम डिवाइड होगा, कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा, आउटपुट बेसिस पे उसका इनकम डिवाइड होगा. Whether lessee is going to record the expenditure, yes, lessee is going to record in P&L account, तो ये lessee उसके डेबिट में टू रेंट ये बताएगा, एंड ही वोंट रिकॉर्ड इन डेप्रिसिएशन, ही इज नॉट रिकॉर्डिंग एसेट. ओके, सो उसके बैलेंस शीट में ठेंगा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 0. ओके, उसके बैलेंस शीट में 0 रिकॉर्ड होगा, ही इज गोइंग टू रिकॉर्ड वॉट एवर दी एक्सपेंडिचर व्हाट इज पेइंग is called as lease amount. Actually, just for concept I'm giving you as a rent amount. Okay, actually we'll record lease expenses, but it is only for conceptual clarity. I'm telling you this is a simple rent that you are paying every month will be recorded as expenditure. That is the basic operating lease. Is very simple. Remember, operating lease doesn't matter, एकदम simple है, ये इतना easy है कि ये कोई भी एरा गेरा भी इसको समझ लेगा. Okay, and suppose now he is also recording expenditure in on output basis, so he will record it as a same example. For lessor it is a liability, for him it will be prepaid expenses, it will be recorded as prepaid expenses. Okay, उसको हम लोग prepaid lease करके बोलेंगे, एंड कभी कभी ये लोग लीज एडजस्टमेंट अकाउंट इसको बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट देना, इसको याद रखना, तो डिफरेंस को ये लोग लीज एडजस्टमेंट बोलते हैं. वन विल रिकॉर्ड इट एज अ लाइबिलिटी, वन विल रिकॉर्ड इट एज एन एसेट. Okay, any difficulty that you have in case of operating lease? I have completed operating lease, otherwise I will move to finance lease. If you have any problem, if you are not getting any concept, you can tell me, sir ये बता दीजिए, ये अच्छे से बता दीजिए. तो ये लीज का कॉन्सेप्ट है, बस भाई मैं आपको डायरेक्टली टू दी पॉइंट बताऊंगा, ना एक्स्ट्रा ना कम, जितना भी होगा वो डायरेक्टली सटीक बताऊंगा. यस, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अशिता बेटा? क्या नहीं याद आ रहा था, फटाफट बताइए. सर सब क्लियर हो गया, बस ये आउटपुट बेसिस वाला थोड़ा सा भूल गई थी, एंड अनदर वन वाज प्रीपेड एक्सपेंसेस को लीज एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ये वाला पॉइंट. यस, कुछ लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं, कुछ सस्पेंस बोलते हैं, सो से वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो ये प्रीपेड के बदले में लीज एडजस्टमेंट, बिकॉज इट इज डेबिट एंड क्रेडिट, कुछ भी आ सकता है, तो सम पीपल कॉल इट एज लीज एडजस्टमेंट, सम पीपल मे कॉल इट एज लीज सस्पेंस. ओके, अरिन जैन, हाँ जी बेटा बोलिए फटाफट. सर लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं. स्पॉटलाइट पे मुझे रखिए, कौन है आज टेक्निकल पर्सन? आप देखिए कौन दिख रहा है स्पॉटलाइट में, मैं ही दिख रहा हूँ ना यूट्यूब पे. हाँ, मैं ही दिखना चाहिए बस यूट्यूब पे. हाँ जी, ओके ओके, और बाकी लोग मुझे पिन कर देना. हाँ जी, हाँ अरिन बेटा बोल. ओके, हाँ जी, अरिन बोलिए. लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं. लीज इक्वलाइजेशन बोलो, लीज एडजस्टमेंट बोलो बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं है.
ठीक है, डेबिट क्रेडिट ओके दोनों भी बैलेंसेस आ सकते हैं। एग्जाम में आप प्लीज इक्विलाइजेशन जो स्टडी मैट में वर्ड दिया है वही यूज कर लेना। सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? इजी लग रहा है एकदम, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है आज के इसमें? चलिए ठीक है, आई विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देन इट इज कॉल्ड एज इन द बुक्स ऑफ फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज में क्या रिकॉर्ड होगा? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द कंडीशन, कंडीशन यू कैन रीड इट फ्रॉम द स्टडी मैट, अदरवाइज आई विल टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट लीज का बाकी का। यस, यू आर नॉट फाइंडिंग इट वेरी फास्ट नो आशिता? बहुत फास्ट नहीं लग रहा है ना बेटा? नो सर, सही है। सही है ना? स्पीड एग्जाम के हिसाब से सही है। चलिए, यस। अभी इससे कम नहीं हो सकता है क्योंकि एग्जाम बहुत पास में। कम चाहिए तो रेगुलर बैच अटेंड कीजिए। हाँ जी, फाइनेंस लीज। नाउ फाइनेंस लीज में क्या होगा? इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, फर्स्ट यू आर गोइंग टू सी इट इन द बुक्स ऑफ लेसॉर। चलो याद कर लीजिए, लेसॉर के बुक्स में क्या होगा? पी एंड एल होगी और बैलेंस शीट होगा। यस कशिश, कैन यू टेल मी बैलेंस शीट में क्या दिखेगा लेसॉर के? यस बेटा कशिश, वुड यू लाइक टू आंसर इट? यस सर, सर एसेट दिखेगा लेसर की बुक में, लेकिन जो डिप्रिसिएशन और वो है वो हम लेसर की बुक में। और अच्छा, तो बैलेंस शीट में आपके लेसी अमाउंट दिखेगा एज अ डेटर, एज एन एसेट लेसी का अमाउंट दिखेगा। नाउ वी विल रिकॉर्ड इट एट विच वैल्यू? लेसी अमाउंट? सर ओरिजिनल वैल्यू, नो, व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल कॉस्ट। एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? सी इन द बुक्स ऑफ लेसी, वैल्यू इज इक्वल टू present value of minimum lease payment that we have to calculate. Which is the value beta we are going to calculate? Or fair value, whichever is lower. Now, how to calculate present value of minimum lease payment? See, minimum lease payment का present value calculate करने का एक तरीका होता है. What is the value? How are you going to calculate it? It's very simple. That you will calculate lease term का lease payment every year, उसकी present value. Now, in case of lessor, you will consider GRV also and UGRV also. Got the concept, Kashish? And this value we are going to calculate. So how to calculate this? We'll take some basic examples of this. We already covered this. This is like a quick revision. So present value of minimum lease payment we are going to calculate. Okay. So let's see. Is a debtor and his asset is going out. तो asset उसके बुक में नहीं दिखेगा. Asset उसके बुक में नहीं दिखेगा. Asset goes out होगा या he can record it as a sale also. If it is a regular transaction. Now see, every year, first he will record every year whatever the interest part. So finance income. Now finance income means what? Simple interest. Here we have to bifurcate our principal amount and interest amount. So first, without giving, so see, this is a present value. Lease payment, it is a present value. Okay. In that every year interest amount is added. इंटरेस्ट अमाउंट उसमें ऐड होगा. तो इंटरेस्ट इज अवर इनकम लेसॉर के बुक्स में. सो फर्स्ट ईयर के एंड में यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट दूसरा इफेक्ट किधर बढ़ेगा? दूसरा इफेक्ट लेसी के बैलेंस में ये इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ेगी. इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ेगी, दैट इज अ फाइनेंस इनकम. एंड देन we will receive cash or cash or bank balance of the first year, and this cash and bank balance will be deducted. That is the first installment or first rent, second rent, third rent. So every year you are going to first record this finance income. See, पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा, it's a lessee account debit. Lessee account debit to asset, or might be it is called as a sale. ओके, एसेट भी गोज आउट हो सकता है या ये उसका रेगुलर ट्रांजैक्शन होगा तो ही विल रिकॉर्ड एज अ सेल. व्हाई लेस इज डेबिटेड? बिकॉज ही इज अ डेटर. ही इज अ डेटर. तो ये ईयर 0 में होगा. ईयर 1 में क्या होगा? ईयर 1 में
Yes, first lessee से we are going to receive interest. So lessee account debit to interest. Interest is our income. तो interest को हम लोग ऐड करेंगे P&L के क्रेडिट में. Lessee balance we will increase. Then what will happen? Bank account debit टू लेसी. लेसी का बैलेंस जीरो कर देंगे. लेसी का बैलेंस नीचे लाएंगे. ही इज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड. ओके, नाउ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मींस फर्स्ट रेंट वी रिसीव्ड. ओके, और इस तरीके से आपकी एंट्रीज होती रहेगी. एट द एंड लेसी का बैलेंस यू विल रिकॉर्ड एट जीआरबी एंड यूजीआरबी. ये एंड में बच जाएगा, जीआरबी एंड यूजीआरबी. लेसर के बुक्स में वी कंसिडर अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑल्सो. अनगारंटेड मतलब जिसकी गारंटी सामने वाले ने दी नहीं है. लेसर को थर्ड पार्टी ने दी है, लेसी ने नहीं दिया. हु हैज नॉट गिवन दिस गारंटी? लेसी हैज नॉट गिवन द गारंटी, सो लेसी वोंट कंसिडर दैट. सो दिस इज सिंपल. एवरी ईयर क्या होने वाला है? एवरी ईयर फाइनेंस इनकम होगा. ओके, एंड इनके बुक्स में, लेसी के बुक्स में क्या होने वाला है? एसेट विल बी रिकॉर्डेड. चलो ये तो समझ में आ गया. ठीक है, लेसर के बुक में एनी डिफिकल्टी? अशिता पूरा क्लियर हो गया बेटा? ओके, पूरा यस सर, क्लियर. क्लियर. हाँ, क्या भूल गए थे इसमें से? कुछ याद ही नहीं सर आ सब रहा क्लियर. था. बस क्लियर ये था. हाउ टू कैलकुलेट एमएलपी का, जर्नल एंट्रीज का लॉजिक अच्छे से अभी क्लियर हुआ. ओके, नाउ सी लेसी के बुक्स में क्या होगा बेटा? लेसी के बुक्स में अशिता, लेसी के बुक्स में क्या होगा? आप थोड़ा लॉजिक लगाइए. यस सर. सर बैलेंस शीट में अभी एसेट दिखेगा एसेट इधर दिखेगा. हाँ जी, एंड लेसर हमारा क्रेडिटर होगा. वेरी गुड बेटा. लेसर हमारा क्रेडिटर होगा. सो फर्स्ट एंट्री वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड एट व्हाट वैल्यू बेटा? प्रेजेंट सर वैल्यू ऑफ लॉग मिनिमम लीज फेयर पेमेंट. वैल्यू. ओके, ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट प्लस ओनली जी. जीआरवी or fair value whichever is lower. He won't consider UGRV. Because he is not giving you guarantee, no? यस सर. Okay. Next entry. Next entry क्या होगा? सर नेक्स्ट पी में उसका टू डेप्रिसिएशन आएगा. अच्छा, एसेट है तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा. यस सर. दूसरा इफेक्ट इधर से लेस होगा. हाँ, तीसरा एंड रेंट टू रेंट. नो, रॉन्ग. टू फाइनेंस एक्सपेंसेस. टू फाइनेंस. फाइनेंस एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट विल बी एडेड इन दिस फाइनेंस एक्सपेंसेस. Then installment will be paid. So lessor का balance first installment or first rent, whatever you are calling it as, and इधर से cash balance कम होगा. So you have to understand one by one effect. First effect, asset को debit, lessor को debit. Second effect, depreciation. You have given it correctly. Third is finance expenses. You will add it in lessor, that finance expenses. And first installment you paid, and that is the cash balance you paid. So these are two effects. So effects आपको याद रखने हैं. What is the wrong thing? Rent, we cannot call it as the expenditure. Rent, we have to bifurcate it into two parts. One is the principal amount and second one is the interest amount. Okay. So we cannot take it directly rent as expenses. ओके सर. Rent expense कौन से मेथड में आता है डायरेक्टली? Whatever rent you are paying. Operating lease. Finance lease में you have to bifurcate every installment, every year का lease payment in two parts. One is the principal amount and one is the interest amount. This interest will be transferred to expenses. And principal amount directly lessor में से balance में से minus होगा. Because you already recorded principal amount as a liability. Okay, ये लीज का लॉजिक है, ये भूलना मत बेटा. आप भूल चुके हो. बहुत से स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते. मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीज. व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन? लीज मतलब क्या? दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. व्हाट इज द फाइनेंस लीज? सी, ऑपरेटिंग लीज में whatever installment you are paying will be treated as expenses in case of operating lease. But in finance lease, it is divided in two parts. One is the principal amount and one is the interest amount. Principal amount you already booked as a lessor. Asset account debit to lessor account. Asset account debit to lessor account. You already booked that amount.
एंड व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट जो है ना वो आप एक्सपेंडिचर बाद में अमाउंट कैलकुलेट करते हो, इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा, इसका टेबल हमें विद डिस्काउंटिंग फैक्टर बनाना पड़ता है, अभी वही तो हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। दिस इज अ लीज ट्रांजैक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट, इसकी प्रैक्टिस करो बेटा कि एग्जैक्टली हाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में वॉट एवर यू आर मेकिंग द पेमेंट, यू विल रिकॉर्ड इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट करके एक्सपेंसेस। Okay, you don't have to bifurcate it. And here you have to bifurcate each installment in two parts: principal amount and interest amount, principal amount and interest amount. This is the logic of finance lease. समझा बच्चा? Yes, sir, clear. Everyone is clear बेटा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट। If you have any difficulty, you can ask me बेटा। पूरा क्लियर है? जीआरवी, यूजीआरवी, यूजीआरवी लेसर के बुक में आएगा बेटा, अनमोल। यूजीआरवी लेसर के बुक में आएगा। कोमलप्रीत भी बोल रही है यस सर, ओम भी बोल रहा है यस यस, कशिश भी यस। बाकी स्टूडेंट्स दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट। आयुषी वगैरह बेटा आपको नहीं लगता कि समझाए करके? यस लिखने में भी दिक्कत आ रही है क्या बेटा आयुषी? माई इंटरनेट इज डाउन टुडे, ओके। बेटा सुनील कुमार फाइनेंस वाला नहीं समझ में आया तो बेटा इतना ही याद रखो कि जो भी रेंट होगा ना सुनील जी, वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। रेंट जो भी पे करोगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इंटरेस्ट अमाउंट मतलब हफ्ता, इंस्टॉलमेंट जिसको से डिवाइड करना पड़ेगा। आया समझ में सुनील जी? और आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हो सकता है आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा नहीं है या नहीं भी देखा होगा, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग सब नए लेक्चर्स को ही देखना, जो भी अभी चल रही है May 25 की बैच, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड एक क्वेश्चन आता है सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक में, सेल एंड लीज बैक में बेटा वी हैव डिवाइडेड इन दिस चार्ट। इफ यू रिमेंबर, ये एक फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू होगा तो वॉट एवर द अमाउंट लेसर लेसी को फॉर क्या होता है इधर, यस द सिंपल ट्रांजैक्शन, सेलर सेल्स द प्रॉपर्टी टू द बायर एंड बायर गिव्स दिस प्रॉपर्टी अगेन पोजेशन, सो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड and possession is again retransfer. Lessor, buyer becomes lessor and same asset is given to the seller. So this is one type of the lease and sell and lease back. So sell and lease back, if it is a finance lease and operating lease, so we have a different treatment. And in case of operating lease, loss or profit or recognition is immediately. If selling price is less than the fair value, profit will be recorded immediately. We will take one question. And losses immediately except deferred the compensated by lease agreement. And if selling price is greater than fair value, in that case how I am going to book it? तो book value and fair value का difference immediately and ये आएगा। एंड डिफरेंस बिटवीन पेयर वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस विल बी, प्रॉफिट जो है वो आपका डिफर हो जाएगा। सो इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो सेल एंड लीज बैक के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर हुए। अभी वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन पार्ट। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 45 मिनट्स और 50 मिनट्स फॉर सेल एंड लीज, ये एस 19 के लिए वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टैंडर्ड, और एस 28 भी वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टैंडर्ड है। तो आज मैंने वही प्रोग्राम रखा हुआ था और एक्चुअली लास्ट सेशन में 26 एंड 16 ये रखा हुआ था, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी आई कैंसल लास्ट लेक्चर एंड टुडे we will finish it off and that lecture I will take it after all classes, okay। borrowing cost मेरा ये करना था, ठीक है। एंड 10 और 13 आई ऑलरेडी कवर्ड, तो आपको मैंने बता दिया था कि वो आप थोड़ा सा रेगुलर बैच देख लीजिए करके। 3 डेज में पूरा नहीं कवर कर पाऊंगा। सो दिस बैच में मैं जो भी डिफिकल्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उसकी क्विक रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। Still you have any question regarding theory, so you can ask me, raise your hand. Otherwise we will move to illustration part. चलो, तो आई होप देर इज नो क्वेश्चन। एक तो कुछ भी नहीं समझ में आया, अदरवाइज पूरा समझ में आ चुका है। यस, दो ही ऑप्शन है, एक तो कुछ भी नहीं समझा,
Satyaji, are you getting each and every point? वाह बेटा धार्मिक। तो बेटा तू क्या इसके ऊपर क्या ओपिनियन दूं कि आपको नींद आ रही है, इसके ऊपर मैं क्या बोलूं आपको? जब भी आप लेक्चर्स देखते हो तो बेटा आप सीए करने के काबिल हो क्या नहीं, एक बार ये डिसाइड कर देना। कोई भी लेक्चर देखते हो तो मुझे नींद आती है, तो बेटा आपको एक तो फिर सेल्फ स्टडी करो आप। कोई टीचर आपको, सभी आईसीआई टीचर्स आपको ऐसा सिखा रहे, एंड इफ यू आर गिविंग सच टाइप ऑफ कमेंट्स बेटा धार्मिक। चलिए, सो लेट्स मूव to question number one. Now see, one by one question. I will give you shortcuts also for solving it because I am taking financial management. So this standard is very easy for me. S28 also. So this is the illustrations from your study mat. Okay. Yes. Ashita, read the question. Yes, sir. S Square Private Limited has taken machinery on finance lease from SK Limited. The information is as under. Lease term is 4 years. Fair value at inception of lease Why we are 20 lakh. calculating fair value? Sir, to find this lease will record at lower of fair value or the present value of MLP. Correct. Next is lease rent, that is 6,25,000 per annum at the end of the year, How many years? 4 years. So these are my cash outflows because we want to record lease liability. Lease liability means किसके books में record करोगे आप? Sir, lessee के books में. Very good. हाँ जी. Next आगे. is the GRV is 1,25,000. Then expected residual value 3,75,000. So what is Implicit, UGRV? Yes. sir, What? 2,50,000. 2,50,000. Yes, sir. Hmm. Then implicit interest rate is 15%. Hmm. Then discounted rates for first year, second year, third year, and fourth year are also Are given given. respectively. ठीक है, वो ठीक है. So calculate the lease liability. Now tell me, in the books of lessee, are you going to consider GRV or only UGRV or both? Sir, only UGRB. हाँ, only GRV बेटा. Exactly Sorry, उल्टा sir, बताया. only GRB. क्या कर रहे हो ऐसे? Guaranteed residual value ही देखेगा ना वो. हाँ. Now Yes, 1-4 का discounting factor means you will add these 4 factors, correct? yes, sir. And last year का 0.5718. यूज memory plus का function 6,25,000 into 2.855 memory plus. Sir, 18,55,850. And what is your fair value? 20 20 lakhs. lakhs, which is lower. Lower. Okay. So see the answer. Yes. Easy. Any difficulty? No, sir. Chalo, move to next question. So lease liability, you will consider only residual value guaranteed. वहां पे आपने क्यों यूजीआर भी बोला मुझे पता नहीं आशिता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आशिता, रीड इट फास्ट. Prakash Limited leased a machine to Badal Limited on the following terms. Fair value of the machinery 28.3, lease term 5 years, lease rental per annum 8, GRV 1.6, expected
Residual value 3 and internal rate of return is 15%. Discounted rate for first year to fifth year are given as certain unearned finance income Now, income for whom? for lessor. Lessor is having income, no? So Yes, lessor will consider GRV, UGRV or both? both. Both. So इधर लिखना both GRV plus UGRV. Correct? Now, what is the Yes, sir. format of unearned finance income? See, what is unearned finance income? It is the gross investment. Now, what is the gross investment? See, gross investment is including interest. So, lease rental for 8 lakhs. Acha, first we will calculate the difference, fair value or present value of minimum lease payment, whichever is lower. Okay, now present value of minimum lease payment. 8 lakhs कितने साल के लिए मिल रहा है बेटा? 5 years. So 1-5, 8. And in fifth year, you will consider both, no? Yes, sir, both. हाँ, so 5 years का discounting factor बोलिए. 0.86967561 add करो plus 0.5718 plus 0.4972 and plus अच्छा क्या रहेगा रे मेरा 869675615718 अच्छा 65 हाँ 3.3522 3522. and last year का 0.4973. 8 into 3.3522 memory plus 3 into 28.30 आया क्या? हाँ तो यही आया है फेयर वैल्यू भी 28.3 is a fair value also, correct? Yes, sir. And what is your gross investment बेटा? आजू बाजू में आवाज है क्या आशिया? Yes, sir. Yes, sir. I have to mute myself. तो 8 into 5 years plus 3 तो 8 into 5 43 plus ये विदाउट ये 43 minus 28.30 14.7 is the finance income. So present value you are going to calculate and the difference will be called as unearned finance income. Easy था? Difficult है क्या easy है? Easy? Yes. बोलो आशिता. Yes, sir. Easier. चलो next third question. Sale and lease back. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने वाला हूं तो फटाफट फटाफट देख लीजिए. ऑल आर सेइंग इजी है. आइदर सच्ची में इजी है क्या ऐसे ही बोल रहे हो आशिता जी? क्योंकि सीए फाइनल स्टूडेंट्स आल्सो फाइंडिंग दिस स्टैंडर्ड वेरी डिफिकल्ट. अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द चार्ट. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? Sale price. First I will consider book value, then selling price, and I will consider fair value. Okay, for each transaction. So first one, book value is 40 lakh, 50 lakhs, and fair value is also 50 lakhs. So fair value is of no use. 40 और 50 के बीच में difference है 10 lakhs, and 10 lakhs we will record it immediately. So 10 lakhs profit immediately. Correct. Second situation, 40, 50, 60. See, fair value is on the higher side. So, ठीक है, you are giving it back. So it should not be, it is not actually, you are in profit. And this profit you will record it immediately. So this situation, आपको ये चार्ट याद रखना है. कौन सा चार्ट याद रखना है? तो आपको एक चार्ट जो है, ये चार्ट को याद रखना है.
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, केस 1 था ये केस 1 था। एंड सेकंड केस में सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। सो ये केस 2 प्रॉफिट। नाउ थर्ड केस 40, सेलिंग प्राइस 38 एंड फेयर वैल्यू 45। सो सेलिंग प्राइस इज लेस देन, इधर क्या है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। सो केस 2 ही आया, केस 2 ही है। सो केस 2, सो 40 माइनस 38 इज अ 2 रुपीज लॉस। एंड लॉस के केस में क्या लिखा है, इट शुड नॉट बी deferred if compensated by lease rentals, okay, deferred if compensated by less lease rentals। तो इधर हम लोग नोट लिखेंगे not compensated by less lease rental, not compensated by future payments। ठीक है, सो ये नोट लिखना जरूरी है। थर्ड केस 40 50 फेयर वैल्यू 40। सो इधर सेलिंग प्राइस इज हायर देन फेयर वैल्यू। अभी इसमें क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इज 0, इट विल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। एंड फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है 10 lakhs, ये 0 एंड 50 एंड 40, ये जो है वो हम लोग डेफर करेंगे, दैट वी विल डेफर। ओके, सो फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस डेफर करेंगे एंड 40 का 0 ये हम लोग इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे। सो नो लॉस नो प्रॉफिट। तो ये देखो 0 एंड प्रॉफिट ये डेफर करेंगे, फेयर वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस विल बी डेफर। केस नंबर 3। नेक्स्ट 40 50 46। अभी 40 एंड 46 के बीच में 6 lakhs इमीडिएटली एंड 50 एंड 46 4 lakh डेफर। देखो 4 डेफर एंड 6 इमीडिएटली, करेक्ट। लास्ट 40 39 35। So 40 and 35 का डिफरेंस 5 lakhs लॉस इमीडिएटली, एंड 39 and 35 का डिफरेंस 4 डेफर। सो 5 इमीडिएटली एंड 4 डेफर, बस amortize। केस 3। एनी डिफिकल्टी? यस सत्या जी बोलिए। सर इसमें व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डेफरिंग द प्रॉफिट बिटवीन रेगुलर फेयर बैच, वैल्यू? रेगुलर बैच। अभी टाइम ही नहीं है बेटा एक एक चीज को एक्सप्लेन करना, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सत्या। ओके ओके सर। ओके, रेगुलर बैच का लेक्चर अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉजिक यू हैव टू अटेंड द रेगुलर बैच। दिस इज ओनली एंड ओनली रिवीजन बैच, मतलब आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी देखोगे ना तो भी आपको याद हो जाएंगे। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा ये, सिर्फ इलस्ट्रेशंस, लॉजिक आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बैच। सॉरी सत्य जी, बट दिस इज अ ट्रूथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर बुरा भी लगता है कि क्यों लॉजिक नहीं बोला, पर बेटा फिर बैच का महत्व ही नहीं रहेगा, रेगुलर बैच और इसमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा फिर सत्या। ओके ना बेटा, आप समझ लो बेटा, आपको रेगुलर बैच में आधे चीजें जो नहीं क्लियर होगी ना वो इधर क्लियर हो जाएगी। ये फुल स्पीड बैच है। यस, एंड इफ यू आर सेइंग मी कि एक्सप्लेन लॉजिक, देन बेटा आई विल कवर ओनली S19, दो स्टैंडर्ड नहीं हो पाएंगे फिर। यस अशिता, क्या करना है बेटा, लॉजिक या एग्जाम ओरिएंटेड? सर एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, लॉजिक के लिए रेगुलर सेशंस देख लेंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अच्छा, सॉल्व वन क्वेश्चन, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन टू सॉल्व। चलो सत्य आप बताओ, टाइम, बुक वैल्यू, सेलिंग प्राइस, फेयर वैल्यू। अशिता बोलने वाली है क्या बेटा फटाफट, कोई एनी वन ऑफ यू वांट्स टू आंसर इट, दो इट इज रॉन्ग।
ओम को आंसर देना है बेटा, वेरी गुड बेटा ओम, चलो चलो चलो, बोलो, करो, अनम्यूट करो बेटा, हाँ चलो फटाफट लो। WDV हाँ सर, 300, सेलिंग मैं WDV पहले लिख लेता हूँ बेटा, 300। WDV ओके 300, 400, फेयर वैल्यू 400, इधर सर। 300, हाँ 400, 450, 300, 250, तीसरे क्वेश्चन में फेयर वैल्यू 350, 300, 400, 300, 300, हाँ बेटा, और कुछ है? नहीं, चलो बोलिए केस सर। बाय केस बताओ, हाँ बोलिए। फर्स्ट ए में सुन ना ओम, ओम यू आंसर एक ऑलरेडी, मतलब आप नॉर्मली आंसर देते हो, मैं कोमलप्रीत को पूछूं क्या कभी? नहीं तो बेचारी ने हैंड रेस किया ओके है। ओके सर। हाँ, यस बेटा, कोमलप्रीत। Yes, sir. हाँ चलो बेटा, केस 1, केस 2, केस 3 फटाफट बोलो, फर्स्ट केस। First case, sir, 100 profit record immediately. 100 Selling price इमीडिएटली, minus book चलो value. फुल मार्क्स मिल गए, हाँ नेक्स्ट। Second case, 100 immediately profit. 100 इमीडिएटली प्रॉफिट, हाँ नेक्स्ट। Third case, 50 loss immediately. लॉस इमीडिएटली, पर एक लाइन नहीं लिखा इसलिए मार्क गया, इट शुड नॉट बी कॉम्पेंसेटेड बाय फ्यूचर Compensated पेमेंट। by loss. हाँ एक मार्क गया, हाँ आगे नेक्स्ट। Then 100 immediately रॉन्ग, profit. जीरो, जीरो एंड 100 डेफर, Sir, yes, sir, 300, yes. 300, हाँ आप केस 3 में हो। हम्म, Then, sir, 50 deferred and 50 100 loss इमीडिएटली एंड immediately. 40 डेफर, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हुआ, 2 मार्क्स मिले Sir, इसमें। ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा, एंड सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस डिफर होगा। okay, sir. 2 मार्क्स मिले, इट्स ओके कोमलप्रीत, यू गॉट योर मिस्टेक, Yes, sir. नाउ इजी। Yes, sir. हाँ, आपका आया था क्या बेटा? सब आए थे आपके, चलो आगे। यस बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, फेवरेट क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन को भी याद रखना। यस अशिता, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, TYK 10। Classify the following into either operating or finance lease. Lease has the option to purchase the asset at lower than fair value at the end of the lease term. बिफोर दिस क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड लीज कंडीशंस। तो ये लीज कंडीशंस जो है, फाइनेंस लीज के कंडीशंस, ये एग्जाम में आ सकते हैं, रट्टा मारे, इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज। तो यस, रीड दिस इंडिकेटर्स फर्स्ट। So indicators of finance lease are: the lessor transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term. The lessee has the option to purchase the asset at a price lower than the fair value. The lease term is for the major एक part सेकंड, एट अ प्राइस लेस देन द फेयर वैल्यू, ओके, ओनरशिप ही ट्रांसफर टू द लेसी, हाँ the lease term is for the major part of economic life of the asset, even if title is not transferred. At the inspection of the lease, present value of minimum lease payment amounts to substantially all of the नाउ fair दिस value of सब्सटेंशियली मीन 90%, हाँ, क्या बोलते हैं सब्सटेंशियली मतलब 90%, मतलब योर 90%. प्रेजेंट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू का डिफरेंस, इट ऑलमोस्ट ओनली 10% का डिफरेंस है, ओके। Okay, sir. हाँ जी, Then the lease asset is of a specialized nature such that only the lessee can use it without major modifications. ये रट्टा मारा, ये याद रखना पड़ेगा। समटाइम्स दे मे आस्क यू टू राइट ओनली इंडिकेटर्स, तो दिस कीवर्ड्स तो आपके आने ही चाहिए जो मैंने अंडरलाइन करके दिए हैं, ठीक है। Yes, sir. स्पेशलाइज नेचर, हाँ बोलिए क्या है? यस, The first one is नहीं एक सेकंड, स्पेशलाइज मतलब लेसी ने जैसे बोला वैसे बना के दिया, लेसी ने जो, लेसी का एसेट है ये, लेसी के टर्म्स के हिसाब से डिक्टेट होगा ये सब, ये लेसी के फेवर में जा रहा है,
उसको लोअर प्राइस में मिलेगा, उसको मैक्सिमम लाइफ। तो ये सब लॉजिकल है, ये सभी चीजें को याद रखो। हाँ जी बेटा बोलिए। So, first is the lessee has the option to purchase the asset at lower than the fair value at the end of the lease term. तो ये क्या हुआ, So, it फाइनेंस is लीज हुआ। finance. हम्म, Next is economic life of the asset is 7 years and the lease term is 6 years, but the asset is not acquired at the end of the lease term. Again, finance lease. फाइनेंस लीज मैक्सिमम लाइफ कवर हो चुका है। हाँ। Then economic life of the asset is 6 years, lease term is 2 years, but the asset is of a special nature and has been procured only for the use of lessee. So finance lease. And the फाइनेंस present लीज। value of minimum हाँ, lease payment is equals to X and fair value of the asset is Y. तो 90% मतलब सब्सटेंशियली कवर होना चाहिए। Finance lease. रीड द आंसर। सब्सटेंशियली इक्वल टू वाई होगा तो हो जाएगा। हाँ जी। So point one, if it becomes certain at the inception of lease itself that इंसेप्शन। the option will be exercised by the lessee, it is a finance lease. Second, the lease will be classified as a finance lease since a substantial portion of life of the asset is covered by the lease term. And third, since the asset is procured only for the use of lessee, it is a finance lease. And fourth, the lease is a finance lease if X equals to Y or where X substantially equals Y. ओके, Yes, चलो, sir. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो फॉर द प्रैक्टिस। हाँ, एनी डिफिकल्टी अदर स्टूडेंट्स? चलिए, नो डिफिकल्टी। आइदर मैंने लिस्ट बहुत ही अच्छा लिया था अरिन जी, अदरवाइज आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, या बोथ। 60% नीड टू सी रेगुलर बैच। ओके, अरिन बोल रहा है बोथ। आशिता तुम्हें क्या लगता है बेटा? सर आपने अच्छे से लिया था। नहीं नहीं बेटा, आपने पढ़ाई भी अच्छे से किया है। क्या भूल क्या गए थे आप इसमें से? कुछ भी नहीं तो भूले थे आप? सेल एंड लीजबैक भी भूल गए थे क्या? नहीं सर, वो वाला पॉइंट याद था, बस ये जीआरवी यूजीआरवी उसको थोड़ा और ब्रशअप करना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है। टीवाई के 11 रीड। A machine was given on 3 years operating lease by a dealer of the machine for equal annual lease rentals to yield 30% profit margin on cost rupees 1,50,000. Economic life of the machine is 5 years and the output from the machine are estimated as 40,000 units, 50,000 and 60,000, 80,000 and 70,000 units consecutively for 5 years. And straight line depreciation in proportion of output is considered appropriate. Compute the following: annual lease rent income to be recognized in each operating year, and depreciation for 3 years. बताइए। So first is annual lease rent. हम्म, Sir, first we'll calculate the total lease rent and then we will divide it in the 3 years. सी 1,50,000 और उसका कितना परसेंट? 30% 1 3. मार्जिन ऑन कॉस्ट। तो आपको 1,50,000 प्लस 30%, 195 करेक्ट है? Yes, sir. 195 नाउ। लीज एंड रिसीव्ड दिया है क्या उन्होंने? नहीं। लीज रेंटल रिसीव्ड दिया है क्या कुछ? कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे से। 5 years है ना? Yes, sir. 39,000 आना चाहिए।
इंस्टीट्यूट आंसर कितना है देखो मैथ में बेटा, 32,500 ही दिया है क्या? ओ हो, करेक्ट 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 करेक्ट, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। 32,500 ही दिया है ना, क्या नहीं? सी, अभी उन्होंने जो लीज पे दिया है 40 50 60, 40 50 60, so what they are expecting in the ratio of 80 70, so they are expecting ratio of total, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे? 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70, so they are expecting this 1,95,000 should be covered in 3 lakh units, तो पर यूनिट कितना कवर करना है उनको? 0.65. 0.65 पर यूनिट। उसमें से आप कितने यूनिट्स तक हो उनके साथ? यू आर टेकन इट 40, ऑन 3 50. years, 3 years means 40 50 and 60, so you are taken it on 1,50,000 into, so your rent for the 3 years it will be 97,500, say yes or no? Yes, sir. And 97,500 will be divided in 3 years, so your equal lease rent 32,500 is the rent you are paying, correct? Yes, sir. Because rent will be same for the year, no, 32,500, ठीक है? So lease rent 32,500 every year. Actually, fourth year, fifth year is we are not concerned. Now output is 40,000. हाँ, so according to you 40,000 का 0.65 मतलब आपका इनकम कितना दिखना चाहिए था फर्स्ट ईयर का? You will amount recorded in the P&L 26,000. 0.65 into 40,000, 26,000. But you paid 32,500, so it is no. Now it is annual lease rent. अच्छा, rent to be recognized in each operating year. Okay, income में. So income received in advance for lessee, lessor, lessor के लिए तो जल्दी मिल गया ना? Hmm. हाँ, 50,000 into 0.65, 32,500, correct? Yes, sir. And 0.65 means 39,000. It should be recorded 32,500. So you will reverse this rent received in advance in third year. Got the chart? Yes, sir. Got it. So annual lease rent 32,500. Lease rent to be recognized in each year is 26,000, 32,500 and 39,000. And depreciation will be recorded in output basis. So 40,000 into 0.65. So first year depreciation, sorry, 1 lakh cost will be divided. Sorry, depreciation is always on cost. So 1,50,000 divided by 3 lakhs into 0.5 आएगा, and 0.5 into पहले साल का 40, मतलब आधा आधा कर दो, 40,000, 25,000, 30,000, 40,000 and 30 first 3 years का ही पूछा है. So they ask you for only first 3 years. So 20, 25 and 30. 1,50,000. Don't divide 1,95,000. Don't divide 1,95,000. Divide cost. Correct? Yes, sir. Got it. Any difficulty? No, Any sir. difficulty? Yes. No. ये फोर्थ और फिफ्थ कैंसिल कर दो बेटा, ये कहाँ से आ? ओके, एनुअल लीज में एक जीरो बढ़ गया है, हाँ. एनी डिफिकल्टी? सी बेटा, वापस से एक बार सी, एक बार मैं वापस से बोलता हूँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. देखिए 1,50,000 आपको रिकवर करना है प्लस 30%, बिकॉज हम लोग सामने वाले से प्रॉफिट भी लेकर करेंगे. तो ये कितना हुआ? 150 प्लस 30%, तो 195. वी हैव टू डिवाइड इट ओवर 3 lakh units. So 3 lakhs units. So 195 divided by 3 lakhs. 0.65 is our per unit. We are going to charge it to the
person. Okay, now first 3 years. For 3 years का आपका कितना आएगा? 40 plus 50 plus 60. So how much you are going to recover from him? 150 lakhs units, 1,50,000 units into 0.65. So how much you are going to recover? 97,500. 9,75,000. Sorry. No. 97,500. Sorry. 97,500. 97,500 you will divide it over 3 years. 32,500 is the income for year per annum. 32,500. Say yes or no. And 40,000 into 0.65. 26,000. 50,000 into 0.65. 32,500. And 60,000 into 0.65 आएगा 39,000. So you recorded less income and you received 32,500 from the lessee. So 32,500. So it is received in advance. And that received in advance, we will cancel it in the third year. एकदम easy. बहुत easy question है. डरो मत solve करते टाइम. It will be very simple. चलो next. चार्जर दे दे. Next. Question number 13. Yes, beta Ashita, read. Read, beta. So having noise in my background. ठीक है, no problem. Kashish, read, beta. BP Limited avail the lease term N and L Limited. The conditions of lease term are as under. Lease period is 3 years. In the beginning of the year 2009 for equipment costing rupees 10 lakhs and has an expected useful life of 5 years. The fair market value is also 10 lakhs. The property reverts back to the lessor on termination of the lease. The unguaranteed residual value is estimated at rupees 1 lakh at the end of year 2011. 3 equal annual payments are made at the end of each year. Consider IRR at equals to 10%. The present value of rupees 1 due at the end of rupees ठीक है, 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से 10%. दिया है. हाँ जी बेटा, बोले. See, what is the cost of equipment? Sir, 10 lakhs. Okay, I will give you the calculation. 10 lakhs. But tell me, UGRV is 1 lakh. And we are calculating unearned finance income. So should I consider UGRV or not? Income means किसके बुक में आया? Lessor. Sir, lessor. And lessor के books में we consider UGRV? Yes, sir. Okay. Now see, annual lease payment is not given in the question. Correct? Hai? Yes, sir. We have to calculate it. Sir. So now tell me 1 lakh this is year 0 का value at 10 lakhs and 1 lakh you will get at the end of year 3. So 1 lakh का आज का value कितना हुआ बेटा? You will multiply by third year का discounting factor 0.7513. Yes, sir. 0.751. So 0.7513. 75. हाँ ठीक है, minus 10 lakhs. So how much amount you have to recover from in the terms of lease? 924. 24,870. And what is the 3 साल में cover करना है ना? But simply don't divide by 3 years because we are calculating annuity. Okay, so we have to divide by not by 3 years. We have to divide by annuity factor 2.4868. Yes. So what is my lease amount? 3,71,000. 3,71,911.69. Okay.
एक रहेगा है क्या अपना? हाँ, 371,111 and as it is the 9,24,870 we are recovering, so 10 lakhs rupees, so it is a finance lease almost more than 90%. Okay, and they also ask you to calculate unearned finance income. अनअर्न फाइनेंस इनकम कैसे निकालेंगे बेटा? देखो 371 कितना निकाला था बेटा आपने? 371 371 912 991 912 इंटू 3 years, मतलब 11,15,735. yes sir. फिक्स पकड़ो, प्लस एट द एंड यू आर गोइंग टू रिकवर 1 लाख. तो टोटल कितना हुआ बेटा? 12,15,736, और उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 10 lakhs. So what is the unearned finance income? 2,15,735. 2,15,000 736 or 735, whatever you tell. Easy. yes sir. एक रहेगा या क्या हमारा बीच में? हाँ सर, TY के 12 रहेगी। हाँ, टीवाई के 12 रहेगा. So you got the concept. Here you Yes, have to calculate this factor. सी 10 लाख था, 10 लाख में से हमने यूजीआरबी माइनस किया, तो यूजीआरबी माइनस किया तो दिस अमाउंट हमें रिकवर करना है कितने सालों में? डोंट डिवाइड बाय 3 years बिकॉज वी वांट एन्युइटी फैक्टर. एन्युइटी फैक्टर चाहिए तो 3 years से डिवाइड करना रॉन्ग हो जाएगा, सो 2.4860 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो ये सब मैं स्लोली स्लोली रेगुलर बैच में लिया हुआ है. दिस इज अ क्विक रिवीजन. तो आपको एन्युइटी निकालना होता है, एन्युइटी को प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर से डिवाइड करना होता है. सो यू विल गेट द आंसर 371,911. और उसके बाद अनअर्न फाइनेंस तो मैंने सिखा ही दिया, इंटू 3 करने का, प्लस 1 लाख, और इसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देने का, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 lakhs. बहुत सिंपल रहता है ये. इफ यूर एफएम इज गुड नो, तो आपको ये टॉपिक में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं लगेगा. ओके, बहुत सिंपल है चैप्टर. थोड़ा सा एफएम आपको समझ में आता है तो थोड़ा सा. 12 नंबर, रीड कशिश. yes sir. Lessee Limited took a machine on lease from Lessor Limited, the fair value being rupees 7 lakh. The economic life of the machine as well as the lease term is 3 years. At the end of each year, Lessee Limited pays rupees 3 lakh. The lessee has guaranteed a residual value of 22,000 on the expiry of lease to the lessor. However, the lessor limited estimates that the residual value of the machinery will be only rupees 15,000. देखो लेस्सी लिमिटेड में देखना है तो लेस्सी लिमिटेड में वी विल कंसिडर जीआरबी और यूजीआरबी. Only GR. ओनली जीआरबी, तो ये इज टू कंफ्यूज अस. ठीक है, हाँ बोलिए. Yes, the implicit rate of इम्प्लिसिट रेट return. दिया है, ठीक है. चलो 3 lakhs को तू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 lakhs 1-3 मिलेगा ना आपको. पॉइंट एट Yes, सिक्स sir. नाइन प्लस 0.756 प्लस 0.657, 2.2282, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर. एंड लास्ट ईयर में आपको कितना मिलने वाला है? थर्ड ईयर में 22,000 इंटू 0.657. बोलिए. Yes, 6,99,000, so almost 7 lakh. 699,054. Okay, which is lower, so yes, 699,054. And you are asked to calculate finance charges in each year. अभी ये भी एक नया क्वेश्चन है. सो फाइनेंस चार्जेस इन ईच ईयर मींस, अभी ये क्यों ऐसा लिया है? ये टेबल गलत है, ये मत लेना. देखो, ईयर, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग, इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस, रीपेमेंट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एट द एंड. ये चार्ट चेंज कर देना बेटा प्लीज. 699,054, फाइनेंस चार्जेस एट द रेट ऑफ 15%. चलो ले लीजिए कैलसी. 699,054 इंटू 15%, तो ये आया मेरा 104858. एंड रीपेमेंट कितना किया हमने फर्स्ट ईयर में? 3 लाख. हर ईयर में 3 लाख नहीं नहीं, लास्ट ईयर में 3,22,000 ना बेटा, इंक्लूडिंग जीआरबी.
तो कितना माइनस करूं मैं? तो ये आया मेरा 5,03,912। ये दोनों प्लस करके ये माइनस करना है। अब ये 5,03,912 इंटू 15%, कैलसी पे वैसे ही रखूंगा, 75,587 करेक्ट है। प्लस इज इक्वल टू -3 lakhs। तो ये आया मेरा 279,499। 279,499 मतलब 500 ले लेता हूँ, इजी जाएगा। और ये दोनों का डिफरेंस वैसे देखने गए तो 15% निकाला तो 14,1,195 आ रहा है, बराबर है ना? 15%, 41,925। पर मैं इसमें ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, 322 माइनस 279.5, तो ये मेरा 42,500 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये जीरो बताना है लास्ट में। ये दोनों का डिफरेंस इज द राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 42,500 माइनस 41,925 मतलब 575। इट्स ओके। 7 लाख में 500 रुपए ज्यादा गया तो इट्स ओके, तो दैट इज द राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। सो माई 41,925 आना चाहिए, बट राउंडिंग ऑफ कर लूंगा, सो दैट विल बी माई आंसर। ओके, ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए एग्जाम में। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग, फाइनेंस चार्जेस, रिपेमेंट एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। टीवाई के 12 का प्रेजेंटेशन बदल दो ना, रह जाएगा वो। प्रेजेंटेशन बदल दो। बेटा एनी डिफिकल्टी इन दिस? हाँ, लास्ट वाले में ऑलवेज राउंडिंग ऑफ करते बेटा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करोगे 15 मिनट? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दू, एग्जाम क्वेश्चंस ट्राई करोगे? चलो करो ट्राई। चलो करो करो, करो कैलकुलेट। आई एम गिविंग यू 4 minutes एंड आई विल शो यू द आंसर। ट्राई करो फटाफट। एग्जाम क्वेश्चन से ये आ गए ना बेटा, 2-2 3-3 मिनट में समझ लो आपका लाइफ बल्ले बल्ले। S19 पूरा क्लियर आपको। 3-3 मिनट दूंगा बेटा मैं। एक आध दो लोगों के आंसर्स देखूंगा, वो आ गए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? आई एम नॉट गिविंग यू टाइम। 2-3 स्टूडेंट्स को देख के, उनका आंसर देख के आगे। If nothing is given, think from the angle of lessor. Think from the angle of lessor if nothing is given. बेटा IRR पूछा है उधर, इम्प्लिसिट रेट पूछा है। IRR कितनी बार कैलकुलेट किया रहेगा आपने? दो गेस रेट भी दिए हैं, 10% एंड 14%। ध्यान दो बेटा, मैं मुझे लगता है कभी कभी मुझे ही सब कुछ करके देना पड़ेगा। 1-5 80,000, फिफ्थ ईयर में 64,000, 10% से। क्या बोलो अभी, ये इतना लिखने को आपको इतना टाइम लगता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ?
इतना थोड़ी चलता है स्लो। 3.79, फिफ्थ ईयर में 0.621। इधर आया आपका आंसर डायरेक्टली 80,000 इंटू 3.79, मेमोरी प्लस, एंड 64,000 इंटू 0.621, मेमोरी प्लस 349, 42, 944। आपको आंसर चाहिए 3,20,000। अभी 14% से करेंगे। 14% से पांचों फैक्टर ऐड कर देंगे। इतना मुश्किल था क्या ये? कैसे क्या? 80,000 इंटू 3.79, 64,000 इंटू 0.621, 342,944, 0.877 प्लस 0.6769 प्लस 675। अभी आपको आईआरआर तो आना चाहिए बेटा। इतना इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया अपना कितनी बार? 3.432 एंड लास्ट ईयर का 0.519। So 80,000 into 3.432 and 64,000 into 0.519, 3,07,776 इंटरपोलेशन रूल। सो आपको आंसर चाहिए 3,20,000। यदि 4% से डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाया तो यूर आंसर रिड्यूस टू 10 का 14 किया तो 342,944 माइनस 307,776, 35 डाउन हुआ। सब आता है फिर भी पागल जैसे करने का नहीं क्या? 22,944। तो कितना आपको क्या चाहिए सब में निकाल के दूं तो आप लोग सिर्फ उतना पार्ट करेंगे। 22 4% से बढ़ाया, डिवाइड बाय 35,168, 2.61। तो योर आंसर इज 12.61। क्यों कशिश, यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर बेटा? सेम आंसर मिलना चाहिए। 12.61, एवरीवन शुड गेट द सेम आंसर। ऋषभ, व्हाट आर यू कैलकुलेटेड बेटा? 3,07,776। अच्छा, 10% से आंसर 12.61। इंटरपोलेशन रूल यू हैव टू अप्लाई। इंटरपोलेशन रूल अप्लाई करना है। ट्वेल्व पॉइंट सिक्सटी वन शुड बी द आंसर। इंटरपोलेशन रूल, अरे इंटरपोलेशन रूल मतलब ये डिफरेंस को बोलते हैं। इंटरपोल, पोल है ना वो दोनों, इसको ये लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन रूल। हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसको, कुछ स्टूडेंट्स फॉर्मूले लगाते हैं उसके। एवरी टीचर हैज हिज ओन मेथड। मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ लोग उसको रूल लगाते हैं। एनी डिफिकल्टी? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये अब भी किया क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, अब भी किया था थोड़ी देर पहले। लीज पेमेंट बताओ कितना लेना है?
चलो ध्यान दो, इतना टाइम नहीं लगता। 7 लाख रुपए आपको रिकवर करना है, उसमें से 70,000 यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। 70,000 का 0.683 से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, तो उतना अमाउंट वी आर नॉट गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दी लेसी। लेसर अनगारंटेड उससे नहीं रिकवर करता ना, तो ही इज गोइंग टू रिसीव दिस अमाउंट 47,1810। तो 7 lakhs डिवाइड बाय 40, सॉरी माइनस 47,810, तो कितना अमाउंट रिकवर करना है? यू हैव टू रिकवर 6,52,190 इन हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स। पर 4 ईयर्स से डिवाइड करना बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अब भी किया था भाई साहब हमने ये 3.169। सो आपका 2,02,000, 2,05,803 ये अमाउंट आया। कितना अमाउंट आया? 2,05,803। ये हर साल का लीज, ये कितने साल तक? 4 साल तक। और लास्ट ईयर में कितना रुपया मिलेगा आपको? 70,000। और आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 7 लाख की आपकी एसेट है। तो ये आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होगा। ये एन्युटी हुआ, और एन्युटी होने के बाद इक्वल एनुअल लीज पेमेंट, ये लीज पेमेंट एवरी ईयर हम लोग इतना लीज चार्ज करेंगे। 2,05,803 इंटू 4 प्लस 70,000 माइनस 7 lakhs, तो 193,212 ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 193,212, सेम क्वेश्चन था, सेम, कुछ भी नहीं है इसमें। 7 लाख, सिर्फ लॉजिक इतना याद रखना है, 7 लाख रुपया मुझे रिकवर करना है, उसमें से यूज ईयर भी मैं लेसी से नहीं रिकवर करूंगा, पर 70,000 मुझे 4th ईयर में मिलने वाला है, तो उसकी आज की वैल्यू 652,190 मुझे लेसी से रिकवर करना है 4 सालों में, पर डिवाइड बाय 4 नहीं कर सकता, तो डिस्काउंट ये करना है। ये अमाउंट आ गया, इंटू 4 किया 70, ये अपना अभी मुझे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना है, मतलब विदाउट डिस्काउंटिंग, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 70,000 डायरेक्टली लिया माइनस 7 लाख, तो ये मेरा इंटरेस्ट का पार्ट आ गया 123,212। कुछ है क्या इसमें बेटा? नहीं है, फिर भी बहुत स्लो करते रहने का। 36 मंथ, सेम क्वेश्चन है। 3 years and 6 months मतलब 5 years। जानबूझ के दिया है 5 lakhs रुपीज कॉस्ट, 3 इक्वल एनुअल में करना है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 3rd ईयर की 50,000। सेम कैलकुलेशन है। चलो अभी ये तो करो फटाफट। 4 नंबर का क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ था। लिखना पड़ता है बेटा, फटाफट पहले लिखना पड़ता है कि क्या रिकवर करना है, क्या नहीं करना है, फिर कैलसी को डायरेक्ट हाथ लगा के कुछ भी नहीं होगा। फटाफट लिखना पड़ेगा आपको। अब ये तो भी बताओ, सेम क्वेश्चन है। कितना आया लीज अमाउंट? लीज अमाउंट कितना आया? हम्म। हम्म। 185,955 इंटू 3 years प्लस 50,000 माइनस 5 lakhs, मतलब 1,07,865। सेम क्वेश्चन। 868, 865 ठीक है। ये एनुअल लीज पेमेंट 185,956। सेम क्वेश्चन दे आस्क यू एवरी टाइम। अभी ये लास्ट टाइम ट्राई करो। चलो, लीज लाइबिलिटी पूछा है।
3,50,000, GRV 70,000. However, Deluxe Limited estimates residual value 25,000. लेंगे क्या नहीं लेंगे? लीज लाइबिलिटी पूछा है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में यूजीआरवी लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो ये लेने वाले हो क्या? नहीं। 3,50,000 एवरी ईयर पे कर रहे हो 4 years के लिए, एंड 4th year में गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 70,000। मैं तो कैलसी पे कर लेता हूँ। 0.909 प्लस 0.826 इंटू लास्ट ईयर में हो गया मेरा आंसर। हम्म। तो कितना आया था आपका आंसर? कहाँ से आया क्या बता? 1-4, 3,50,000। 3 पॉइंट कितना लिया? 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751। क्या आपका ये भी नहीं करेक्ट आता? 3.163, एंड 4th year में 70,000। गलत हुआ क्या मेरा? 3.169 इंटू 3,50,000 मेमोरी प्लस 7,000 इंटू 0.683 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 70,000 इंटू 0.683, 3,50,000 इंटू 3.1 7,000 इंटू 11,56,000, which is lower, so fair value. Yes, whichever is lower, so we'll consider 11,50,000. Yes beta, 56,960 is the correct answer. फास्ट नहीं हो रहा है आप लोगों का, फास्ट। चलो ये तो क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। 24 lakhs, क्वेश्चन 5 ये तो सेम है ना, ये तो आ जाएंगे। क्वेश्चन 9 कर लो, चलो लास्ट। आउटपुट बेसिस है अभी, गड़बड़ मत करना एकदम, बस क्वेश्चन का आंसर निकालना। सेम क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस ले लिया, 1.5 घंटे में पूरा एस खत्म किया। क्वेश्चन थोड़े जूम कर दो, ठीक है कशिश? ये लो। क्या सिखाया? 2,25,000 प्लस 30%, 292,500। एकदम सिंपल। 295,500 डिवाइड बाय टोटल यूनिट 60, 75, 90, 120, 105, मतलब 450, 4,50,000 यूनिट्स। अभी 292.5 डिवाइड बाय 450 मतलब कितना आया? सेम 0.65, 0.65 है। ये भी नहीं आया क्या?
इंटू 60,000, फिर 75,000, 90,000, ये तीनों का टोटल 0.65 इंटू 60,000, ये आया 39,000। 75,000 ये आया, अब भी किया हमने ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 90,000 इज इक्वल टू 58,500, ये तीनों की टोटल 48,750 और 39,000, और ये तीनों को डिवाइड बाय 3, ये आया मेरा, डिवाइड बाय 3 किया तो 48,750। इनका टोटल आया था 146,250, 48,750। अभी पहले साल में हमने 48,750 पे किया, और ये P&L में जाना चाहिए, तो कितना, ये किसके बुक में पूछा है, लीज रेंट इनकम, इनकम बोले तो रिसीव्ड इन एडवांस। कितना रिसीव्ड इन एडवांस हुआ पहले साल में, 9,750 जीरो, एंड लास्ट ईयर में 9,750 रिवर्स करेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस, एंड ये रिवर्स कर देंगे। है क्या डिफिकल्ट? नहीं, फिर भी हमें टाइम तो लगेगा सर, इतना तो टाइम लेंगे ही ना हम लोग थोड़ी फास्ट में करते हैं। 2,25,000 ये हमारी कॉस्ट है। 2,25,000 डिवाइड बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4,50,000 इनटू फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कॉस्ट को डेप्रिसिएशन भी निकालना है ना। 2,25,000 डिवाइड बाय 4,50,000 मतलब 0.5, 0.5 मतलब पहले साल का 30, दूसरे साल का 75 इंटू 0.5, 37,500 एंड 45,000, ये डेप्रिसिएशन खत्म। सेम क्वेश्चन ईयर आफ्टर ईयर, खत्म खत्म खत्म। 48,750 एनुअल लीज, और लीज रेंट इनकम रिकॉर्ड करना है। डिफिकल्ट है क्या? स्पीड चाहिए बेटा, एग्जाम में स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं होगा तो आपको बहुत मुश्किल होगा, और सब आता है आपको। फास्ट, सिर्फ ये कॉन्फिडेंस की कमी है आप में और मेरे में। गलत हुआ तो भी चलेगा, कॉन्फिडेंस। 292 450 क्या, फटाफट यूनिट से डिवाइड किया, पर यूनिट आया 0.65। P&L में जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 60,000, 75,000, 90,000 जो भी आया। यस, ये टोटल लिया, 146,250 डिवाइड बाई 3 किया, 48,750, और 39,000 में से 48,750 आप लोगों ने इनकम लिया, तो बचा हुआ रिसीव्ड इन एडवांस है, और लास्ट में रिसीव्ड इन एडवांस रिवर्स हो जाएगा। क्या है इसमें, कुछ है? स्पीड नहीं आने का रीजन सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी। यस, अशिता, यस सर। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा? सर आपका, बस मुझे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम वाला क्वेश्चन एक पहले वाला सॉल्व नहीं हुआ था, फिर दूसरे वाला हो गया और ये वाला आउटपुट वाला हो गया था। क्या हुआ आज के लेक्चर का फायदा आपको? S19 में आपने कहां तक किया था, और आपको कितना आने लगा अभी? सर मुझे बेसिकली अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में ही दिक्कत हो रहा था, और फिर स्पीड का आज पता चला कि बहुत कम है और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रियलाइजेशन हो गया। यस, 12:40, यू हैव टेकन 12:40। S28 वी आर गोइंग टू सी आफ्टर ब्रेक। एक 15 मिनट का शांति से ब्रेक ले लो, ठंडा कर लो खुद को। S28 के एक आराम से एक बार S28 के प्रिंसिपल्स देख लो, एंड विल मीट एट 12:45, 12:55, एग्जैक्टली 15 मिनट खुद को ठंडा महसूस कर लो। चलो, यस, टेक अ ब्रेक।
डेप्थ में चाहिए ये स्टैंडर्ड आपको? यस, थैंक यू। बोलिए कितना डेप्थ में चाहिए बेटा आपको ये स्टैंडर्ड? आयुषी, कशिश, यस कशिश, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये स्टैंडर्ड आपको? सर AS 28 में थोड़ा मतलब डाउट है। आप जितना रेलेवेंट समझे डेप्थ के लिए उतना ले लीजिए सर, मतलब एग्जाम में उससे, क्योंकि ये बहुत मतलब जैसे CGO का एक भी क्वेश्चन है नहीं बुक में, और वो इतना बड़ा टॉपिक है। यस बेटा, पर इस बार मैं सीजीयू लेने वाला हूँ इन रेगुलर बैच, तो आप वो लेक्चर प्लीज कृपा करके सब लोग देखना। दैट इज द रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एस ओके ट्वेंटी सर। एट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इम्पेयरमेंट ऑन वेनसडे। तो वो जी स्टैंडर्ड आप देख ही लेना, मतलब ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, बिकॉज इन रेगुलर बैच आई एम गोइंग टू टेक मेनी क्वेश्चंस ऑन सीजीयू ऑल्सो, टेस्ट ऑफ सीजीयू एंड ऑल। एंड फिर भी यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आई विल कवर ओवर हियर। ठीक है? यस सर। तो इम्पेयरमेंट के बारे में हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज द इम्पेयरमेंट? लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, फटाफट फटाफट। देखो, एक जेरोक्स मशीन हमने परचेस किया था 1 लाख रुपए को। 1 लाख रुपए को ये जेरोक्स मशीन परचेस करने के बाद गड़बड़ हो गई है। अच्छा, एनीवन हु नोज डजंट नो व्हाट इज द प्रोविजन? अच्छा, चलो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्या करते हैं, विल फोकस ऑन समरी क्वेश्चंस डायरेक्टली। ओके, समरी क्वेश्चंस पे डायरेक्टली हम लोग फोकस करते हैं, सो इट विल बी इजी। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एस 28? यूर कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू शुड नॉट एक्सीड यूर रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मतलब व्हाट? के आइदर इन सिंपल लैंग्वेज नेट सेलिंग प्राइस and value in use similar to this. Now we have seen that cash flows, okay, cash flows मतलब वो आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड एंगल से सिखाता हूँ ये स्टैंडर्ड। ठीक है, आप फिर डिटेल स्टैंडर्ड पढ़ना है तो रेगुलर बैच का लेक्चर का देख लेना। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है। रिकवरेबल अमाउंट मतलब मार्केट में जो वैल्यू है उससे ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए। मार्केट वैल्यू यदि आपकी ज्यादा है और यदि बुक वैल्यू इज शोइंग एक्स्ट्रा, तो बेटा आपको ये डेप्रिसिएशन नहीं बोलना है, यू विल रिकॉर्ड इट एज इंपेयरमेंट लॉस। लॉजिक इज वेरी सिंपल, दैट रिकवरेबल अमाउंट मतलब नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज विच एवर इज हाइयर, ये आपका दिखना रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट फॉर एग्जाम्पल, मेरा सपोज बुक वैल्यू 1 लाख है और मेरी नेट सेलिंग प्राइस आज बेचने का है तो 90,000, और उससे मैं जो इनफ्लोज जनरेट करने वाला हूं जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है, दैट इज 80,000। सो नेट सेलिंग प्राइस इज हाइयर, सो माई रिकवरेबल अमाउंट इज 90,000, बट माई बुक वैल्यू इज मोर। ओके, तो बुक वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन यूर रिकवरेबल अमाउंट। तो मैं इसको 90,000 पे लेके आऊंगा। किस पे लेके आऊंगा? 90,000 पे। तो नीचे लेके, तो बुक वैल्यू की वैल्यू चेंज किया, तो वो कम करना है ना, बुक वैल्यू को रिड्यूस करना है। एंड व्हाट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट लॉस। इट इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट लॉस। गॉट द लॉजिक? इजी? देखो, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं सीजीयू के, एडिशनल क्वेश्चंस आल्सो विल टेक। ठीक है, मैं लेता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, डोंट वरी। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको बाद में। विल डू एग्जाम अप्रोच में, पहले मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं फटाफट।
Ergo Industries Limited gives you the following estimate cash flows, property, plant and equipment. The discount rate is 15%. अभी discount rate क्यों use होगा? Value in use के लिए 15%. Cash flows है 2002, 3, 4, 5, 6. डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है क्या? नहीं दिया. तो 1 डिवाइड बाय 1.15 कैश फ्लो निकाल दीजिए फटाफट. 1 डिवाइड बाय आप लोग कीजिए 1.15 0.8696 7561 फिफ्थ डिजिट पे फोकस करना. 6575 5718 4972. What is the residual value? 1000 lakhs. And value on 112,000 ये 40,000 lakhs था. हाँ मतलब ये and 2000 मतलब उनको लेना है immediately before ईयर 2000 के पहले का मतलब 20 ये इन द सिंपल लैंग्वेज ये हो गया इमीडिएटली बिफोर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था. 2020 XX मतलब आपका आप कुछ भी रखो ये 2020 रखो तो ये 2019 हो जाएगा. आया समझ में? और ये आपका हो जाएगा 22 एंड ये 21 हो जाएगा. एंड रेसिडुअल वैल्यू 26 ऑफ द एसेट और ये है 2019. आप इस तरीके से ले सकते हो. ओके. अभी रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 26 मतलब आप ये इसमें 1000 और ऐड भी कर दोगे. चलो तो लो कैलसी पे 4000 इंटू 0.8696 मेमोरी प्लस 6000 इंटू 0.7561 मेमोरी प्लस 6000 इंटू 0.6575 मेमोरी प्लस 8000 into 5.5718 memory plus and 5000 into 0.4972 memory plus memory recall मेरा आ रहा है 19,000 20.4 and 20,000. अभी ये था 2019 का. ओके तो इसके ऊपर अभी 21 में चाहिए तो 2 साल का डेप्रिसिएशन आएगा ना. तो 40,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 8 years into 2 years. 9750 40,000 में से माइनस. So what is my book value? 30,250 is my carrying amount. हाँ 19 20 21 सॉरी 3 साल खत्म हुए ना बेटा. 19 20 एंड यू आर एट द एंड ऑफ 21 है. सॉरी इट्स माय मिस्टेक. 3 साल खत्म हुए. बहुत ही कंफ्यूजन है. 14,625. तो कितना आया? 25,375. वैल्यू इन यूज कितना निकाला हमने? 19,000. 3 डिजिट्स तक लिया तो 25 आ रहा है. एंड रिकवरेबल वैल्यू विचोर इज हाइयर. तो रिकवरेबल अमाउंट इज 20,000. तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना बताओगे? 5375. 25,375 है ना. सो 5375 इज अ इम्पेयरमेंट लॉस. एंड व्हाट इज रिकवरेबल रिवाइज कैरिंग अमाउंट? अभी 20,000 पे लेके जाओगे. एंड व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर 2002? तो 20,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 5 दैट इज द 3,800. ओके
समझा? देखो पहले कैरिंग अमाउंट निकाला, एनी डिफिकल्टी इन कैरिंग अमाउंट? नो. वैल्यू इन यूज हमने निकाला, वी कंसिडर 4 digits, here we consider only 3 digits. फिर व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज जो निकाला, एंड नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हाइयर. तो 19,025 एंड नेट सेलिंग प्राइस इज 20,000, विच एवर इज हाइयर. तो कितना आया? 20,000. और आपकी एसेट की वैल्यू कितनी दिख रही थी? बुक वैल्यू 25,375 एंड रिकवरेबल अमाउंट कितनी दिख रही है? 20,000. तो बुक वैल्यू ज्यादा है तो इधर इंपेयरमेंट लॉस होगा. तो इंपेयरमेंट लॉस कितने का हुआ? 5,375. तो अभी वो होने के बाद आपकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी दिखी? हाँ, ये रिवाइज अमाउंट हुई, एंड 20,000 अभी नई वैल्यू आई, बुक वैल्यू, एंड 20,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 5 किया तो डेप्रिसिएशन. एनी डिफिकल्टी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सेकंड ईयर. Madam, I'm going to take this topic as a exam oriented approach. Say CGU and all extra practice, we'll do it in the regular lecture. Carrying amount 100 lakhs 2001 में, 5 years, residual value 5 lakhs, and net selling price ये है 25, discount rate 10%, 3 digits तक लो, 0.909, 826, 751, 683, मल्टीप्लाई करो. 30 into 0.751 memory plus 0.683 memory plus 25 into memory recall 121 point and 60 lakhs, whichever is higher, 121, and your asset is showing 100 lakhs. So there is no impairment. So there is no impairment. समझा? वैल्यू इन यूज ही पूछा है, लॉस नहीं है बुक वैल्यू से. ये है थर्ड क्वेश्चन. If there is revaluation in between, if there is revaluation and after that there is impairment, and after that there is impairment, तो ये टाइप का क्वेश्चन है. आफ्टर रिवैल्यूएशन देयर इज इम्पेयरमेंट. Yes, Kashish, read the question, beta. Yes, sir. We Limited acquired a machine on 1st April 2020 2020. ऐसा यार. 2020 for rupees 7 crore and had an estimated useful life of 7 years. The machine is depreciated on straight line basis and does not carry any residual value. On 1st April 2024, the carrying value of machine was That is after how reassessed many years? after 3 years. No, देखो 20, 21 पहला, 21, 22, 22, 23 by and 23, 24. yes, sir, 4 years. 4 years. On 1st April 2024, the carrying value of machine was 7 crores reassessed मतलब 700 lakhs 700. डिवाइड बाय ये हो गया 100 ईच ईयर. तो 100 होने के बाद आफ्टर 4 years 400 दिख रहा है. Yes, sir. बट अभी 510 lakhs, मतलब तेरे रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना गया? One आपके point. रिवैल्यूएशन रिजर्व में 110 हुआ. हाँ, 110. रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका 110 है फॉर द ईयर 2000 मार्च 2006.
ओके, For year end, 79 lakhs पे वैल्यू आ चुका है। अभी क्या करोगे? 510 C, sorry, 2,10,000 now. Carrying amount is 300. Sorry, it's my mistake. 4 years का depreciation means 300 carrying amount and 300 का 510 मतलब 210 is increase in the revaluation reserve. Say yes or no. yes sir. Now see beta, new depreciation is now you left with 3 years, 4 years already completed, Yes sir. and for 3 years now 5.1 divided by 3, and you have finished with 2 years, because now 79 lakhs it is at the end of the 2026, that is after 2 years. So depreciation for 2 years is 3.4. So you provided depreciation of 3.4 and you left with the balance 1.7. Yes sir. 170. And what is your impairment recoverable amount? 79. So 79. you left with 0.91, correct? Yes sir. Impairment loss. Yes sir. One more time. See beta, you bought it at 7 crores, correct? 7 crores in हाँ, sir. 2020. So up to 2024, 4 years depreciation is 1 lakh per annum. So what is the value? Book value is 3. Then you revalued this value to 5.1. So your asset is increased by 2.1. 2.1. Revaluation reserve बोलते हैं इसको as per AS 10. बराबर? Now Yes as per sir. AS 10, अभी ये 3 and 2.1 लिखूं क्या मैं? It will be easy for you. 3 is a cost and this is revaluation reserve. Yes sir. Now your depreciation for 2 years it will be 1, मतलब 2 years का 1 lakh 1 crore every year, and Yes this sir. is 1.4. You One left point. with 0.7 Yes after. sir. So see, this is 2024 and this is 2026. So now what is the balance you left with? 1.7 is your asset value. Yes sir. 1.7 आ जाएगा impairment loss. 1.7. Now Sorry, one. out of 1.7 is a 1.7. What is the your revised value? 0.79. बराबर? Yes sir. हाँ, तो कितने से इम्पेयरमेंट हुआ? Sir, 0.21. Point? 0.21. 1.7 minus 0.79. 0.91. हाँ सर 0.91. तो पहले तुम 0.7 को यूज कर लो, Yes sir. तो तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस 0, एंड इसमें से 0.21 खत्म करो. रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करके हम लॉस को नॉक ऑफ करेंगे. हाँ, yes. So you left with the balance 0.79. So your revaluation balance will be 0 and your P&L में से you will reduce 0.21. Got the concept? Yes sir. Debited to P&L 0.21. So first utilize your revaluation reserve balance. ठीक है? Yes. हाँ सर. थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर अच्छे से कर देना. ये रिवैल्यूएशन रिजर्व को पहले खत्म करना है. Okay sir. ओके, ठीक है. एंड व्हाट इज द assumption that you are providing depreciation not only in P&L but you are providing depreciation revalued portion through revaluation reserve. Okay. Yes sir. Because question में उन्होंने दिया हुआ है. तो 2.1 में से पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर बाद में इम्पेयरमेंट लॉस. अभी ये सेंटेंस नहीं दिया रहता तो we are normally using P&L only, our policy.
नॉर्मली हम लोग डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूड अमाउंट पे भी P&L में डाल देते हैं एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बट दे आर फॉलोइंग दैट there are three options. They are using revaluation reserve to reduce depreciation. Okay. Yes, sir. So ये line I think in your study mat is not there. क्या is there this sentence? Sir, है ना? अच्छा ठीक है. yes. ये sentence है. ठीक है. So in case of revaluation, how are you going to impair the asset? Is a new concept. This question specifically talks about if there is revaluation, how are you going to use the impairment loss? Okay. Yes, sir. चलो ये लो 4 read it. कितने क्वेश्चन है? 5 ही है. क्यों इतने कम? चलो बोलिए बेटा. X Limited purchased a property, plant and equipment for 4 years ago for rupees 150 lakhs and depreciates it at 10% on straight line method. At the end of 4th year, it has revalued the asset So at rupees 150 minus 60, it will be 90. Correct? Yes, sir. 90 sir. का कितना हुआ? 75. तो P&L में कितना गया? 15 loss. loss हो जाएगा. हाँ. And has written off the loss on revaluation to profit and loss account. However, on the date of revaluation, the market price is 67.5 lakhs and the expected disposal costs are 3 lakhs. What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis that fair value for revaluation purpose is determined by market value and the value in use is estimated at 60 lakhs. See, 90 का आपने 15 डेबिट दे दिया after 4 years. Okay, so now your revised value is 75. Yes, sir. And what is your recoverable amount? Now see, cost of disposal you deduct from the net selling price. While calculating selling price, you deduct from the market price. Cost of disposal. Cost of disposal, what are you going to do? Deduct from the market price when you are calculating net selling price. So what is your net selling price? 64.5. Net selling price. Yes, sir. Value in use. Value in use is 60. 60 And net lakhs. selling price is 64.5, which is higher. 64.5. So what will be your impairment loss? 10.5. खत्म हो गया. Easy? Yes, sir. Next. A publisher owns 150 magazine titles, of which 70 were purchased and 80 were self-created. The price paid for a purchased magazine title is recognized as an intangible asset. The cost of creating magazine titles and maintaining the existing titles are recognized as an expense when incurred. Cash inflows from direct sales and advertising are identifiable for each magazine title. Titles are managed by customer segments. The level of advertising income for a magazine title depends on the range of titles in the customer segment to which magazine title relates. Management has a policy to abandon old titles before the end of their economic life and replace them immediately with new titles for the same customer segment. What is the cash generating unit for an individual magazine title? What is CGU? CGU means, suppose if asset is not giving independent inflows, okay, and if it is giving, beta, if it is giving in combination, if you have inflows, for example, suppose my mom, my dad, Daksh, me and my wife, okay, suppose we are 5 family members. Each and every family member has their own responsibilities. And it's possible for us
to earn because my mom and dad, they are taking care of my child in our example. Okay. So whether we are independently earning income or we are earning income due to our support of my parent. Sir, due to support of parents Correct. combined. So Yes, in sir. my example, it is not independently we are earning. We are earning in only because my supporting, yes, my dad and mom, they are doing supporting activity for my life. Okay. So we are working together as a siege. Though they are not earning, but we are earning due to their efforts. Okay. And this is only the reason कि ये CGU होता है. So here you will not calculate cash flows and impairment of only one asset, but you will calculate overall impairment of all assets. Got the concept? Yes, sir. Yes. ठीक है. तो read the answer. हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 150 मैगजीन टाइटल्स है, 70 आपने बाहर से परचेस किए, 80 आपने खुद क्रिएट किए. ओके. अभी जो भी हमने परचेस किए तो उसके लिए हमने कैश पे किया होगा, तो इंटेंजिबल एसेट्स है. एंड Yes, sir. द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल्स जो हमने खुद ने बनाए हुए हैं एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग टाइटल्स, ये हमने एक्सपेंडिचर करके ट्रीट किए हुए हैं, जो हमारे 70 मैगजीन्स नहीं 80 मैगजीन्स का है. कैश फ्लोज फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल. मतलब हर एक मैगजीन टाइटल को हम लोग कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं. टाइटल्स आर मैनेज बाय कस्टमर सेगमेंट्स. अभी कोई कस्टमर लेडीज लोगों का है, कोई सिर्फ फीमेल का रहेगा, मेल का रहेगा, तो वो अलग है. तो ये हमारे मैगजीन्स, बच्चों वाले मैगजीन्स अलग है, एंड उनका एडवर्टाइजमेंट भी अलग अलग होगा फॉर ईच मैगजीन टाइटल्स. टाइटल्स आर मैनेजमेंट बाय कस्टमर, ये ठीक है. The level of advertisement income for a magazine title depends on the range of titles in the customer segment to which the magazine title relates. Management has a policy to abandon old title को वो लोग निकाल देते हैं और replace them immediately with the new title for same customer segment. तो यहाँ पे अपने जो है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कैश फ्लो जनरेट हो रहा है ना आपके. Yes, sir. ठीक है. ईच अदर एंड दैट ईच मैगजीन टाइटल इज सेपरेट. मतलब यहाँ पे हर मैगजीन टाइटल ये सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट यूनिट है. तो ये मेरे मॉम डैड भी कमा रहे, दक्ष भी कमा रहा है और मैं भी कमा रहा हूं, तो यहाँ पे इंडिविजुअली सब कमा रहे. तो हमारा ओवरऑल ये नहीं सीजीओ होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन इज अ सीजीओ. ये एग्जाम्पल में आया समझ में? Yes, sir. यस. तो दक्ष उसका केयर दक्ष ले रहा है, मेरे मॉम डैड उनकी केयर वो ले रहे हैं, हर एक जन अपना अपना पैसा कमा रहा है. तो वो केस में हर बंदा, यही आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज हो जाएंगे. तो यहाँ पे ओवरऑल टीम नहीं लगेगी, यहाँ पे इंडिविजुअल टाइटल विल बी कंसिडर्ड एज द सीजीओ. गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. इजी है. हाँ, sir. तो यहाँ पे इंपेयरमेंट किसका करोगे, पूरे मैगजीन टाइटल्स का या इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल का? Individual magazine Very good, titles. very good, very good. You got the concept of CGO now. 7 number. Yes, sir. An asset does not meet the requirement of environment laws which have been recently enacted. The asset has to be destroyed as per the law. The asset is carried in the balance sheet at the year end as 6 lakhs. The estimated cost of destroying the asset is 70,000. How is the asset be accounted for? सब पूरा impairment loss में जाएगा ना, क्योंकि उसको तो डिस्ट्रॉय करना है.